The absence of a most vital sense. What would it do to me? To my perception of the world? As I stepped from my normal world into what I believed was the abnormal, questions like these plagued me. How would I relate to these people who could not even see? I had dealt with numerous topics in the course of my career as a researcher, but none of the others had baffled me the way this did. My first encounter with my subjects shattered my preconceived notions. I had gone in expecting a group of helpless individuals, lost in a dark world, craving sympathy and cursing their fate. What I found instead was a room full of joy and good cheer, of people who were not only happy, but self-sufficient as well. In the buzz of all the activity around me, I could only keep out of the way. As I observed from the fringes, in this group of lively musicians, I was the outsider. As they happily went about their work, I found myself wondering, what was it that drove them to make such an effort? We often tend to give up in the face of small difficulties. How then would we deal with the loss of sight, something so basic and inherent to our being? That first day, I found myself unable to find a meeting ground or to talk to any of my subjects. On the other hand, I realized that the fact that they couldn't see was not a handicap. It was just an obstacle that they had to work around. The notes drifting in the air were well rehearsed, but the musicians were aiming at perfection. This orchestra, put together by the National Federation of the Blind, was a group of aspiring artists, not satisfied with mediocrity. My day at the practice had made one thing very clear. The visually impaired were not abnormal. They were not even incomplete. They were brave individuals who had found courage deep within to make their way through the world of the sighted. For the first time, I tried to put myself in their shoes. In the following days, I often found myself trying to accomplish daily chores with my eyes closed. In doing this, I realized that not only was I completely inept, I couldn't help but take furtive glances every now and then. With my eyes closed, the world seemed to turn hostile. With darkness closing in and my mind becoming completely disoriented, the only thought that came again and again to me was that life could be very tough for a person who couldn't see. Why then would they set such high goals? What is it that drove them? Why did they not just give up and let life take its own course? I had to find an answer to these questions. बचपन में तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता था बिकॉज मैं आई एम यूज टू प्लेइंग सिमिलर चाइल्ड मैं ऐसे ही सामान बच्चों की तरह खेलती थी, कूदती थी, इधर उधर चली जाती थी. इवन मैं कभी कभी घर से बाहर भी निकल जाती थी. मेरे को ये डर नहीं रहता था चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, बिकॉज ऐसा कुछ मेरे को कुछ पता नहीं था. और बस मैं हमेशा जहाँ से मुझे साउंड दिखाई देता था, मुझे जिस जगह जाना होता था, मैं उसके साउंड पे भागती रहती थी और किसी को पता भी नहीं लगता था. और सब कहते थे वाह कितनी एक्टिव है, मतलब इसे कोई डर ही नहीं है कि चोट लग जाएगी या कुछ भी. लेकिन फिर बाद में जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो पता बिल्कुल मेरे जैसे ही सब बच्चे हैं बिल्कुल. तो फिर मेरे को पता लगा कि हाँ यार, आई एम हैंडीकैप, आई एम ब्लाइंड.
फर्स्ट तो लाइक मैंने सबसे पहले हॉस्टल में एडमिशन लिया था, तो लाइक अभी कॉलेज तो था नहीं, तो हॉस्टल में लाइक जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी तो आई आस्क्ड कि यहाँ पर कोई मेरी जैसी लड़की नहीं है, लाइक ऐसे। तो पेरेंट्स ने कहा, पापा ने कहा कि नहीं बेटे यहाँ पर सब अच्छे हैं और आपको इन्हीं के साथ रहना है और इन्हीं के साथ पूरा रूटीन में चलना है जैसे ही चलते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो लाइक कुछ दिन तक मुझे लगा, फिर धीरे धीरे एक प्रभा नाम की लड़की थी, तो सब कहते थे प्रभा आएगी तो मन लग जाएगा, मन लग जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हैं सब। एनीवेज फ़िलहाल मैं रही, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में मुझे अच्छा लगने लगा। मेरी हैबिट थी, बिकॉज पूरा 12 ईयर्स से जिस स्कूल में पढ़ती हूँ मैं, देहरादून में सबसे बड़ा ब्रेल प्रेस है, तो वहाँ पर सारी बुक्स ब्रेल में अवेलेबल थी। आज तक कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जो हमें ब्रेल में ना मिली हो। लेकिन यहाँ पर हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई, लेकिन ये जो आईपी कॉलेज है यहाँ पर तो फिर भी ब्रेल में बुक्स अवेलेबल हैं। लाइक हिंदी और इंग्लिश की तो ऑलमोस्ट अवेलेबल है ही, और लाइक जो मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, तो इसमें काफ़ी बुक्स रेफ़र करनी पड़ती हैं, तो इतना सारा ब्रेल में लिखना इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बिकॉज रिकॉर्डिंग से मैं इतना पढ़ती नहीं थी। एनीवेज मेरे को आदत डालना पड़ा, थोड़ी यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन हो गया मैनेज। अभी मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, एक ख़त्म होने के बाद मेरे को एमए पॉलिटिकल साइंस में करना है, और मेरे को नेट क्लियर करना है जो प्रोफेसर की डिग्री के लिए होता है। बिकॉज मेरे डैड शुरू से ही चाहते थे, स्टार्टिंग से ही, कि मैं लेक्चरर बनूँ, और अब फिर मेरा भी यही ओपिनियन है कि मेरे को एमए करना है पॉलिटिकल साइंस में, देन नेट क्लियर करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्रॉपर नहीं कर सकती कि हाँ भाई पब्लिक के सामने, बिकॉज अभी तक किया नहीं। जैसे डांस, आई रियली लाइक डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, बट मैंने कभी देखा नहीं है कुछ, तो इसलिए वो एक्शन, वो उस तरह के एक्सप्रेशंस, तो लाइक मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील होता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अकेले में जिस सॉन्ग पे मुझे लगता है मैं डांस करती हूँ। और लाइक मेरे को गाना पसंद है, मेरे को म्यूज़िक मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। और लाइक बुक्स रीडिंग, कुछ भी, ये सब मेरी ज़्यादा हॉबीज़ हैं। एक्टिंग करना अपने आप ही, कि खुद ही वो कुछ और बन जाऊंगी, खुद ही 2 कैरेक्टर्स मैं खुद ही बन के फिर उसको रिकॉर्ड करना, ऐसे ये ही मेरी हॉबीज़ है। इसमें हमारे स्कूल के बच्चे 3 बच्चों ने जूनियर में पार्टिसिपेट किया था। I was greeted by thunderous applause as I entered the JPM Senior Secondary School. Athletes from the school had swept all the top positions at an inter-school tournament. Loud cheers and clapping accompanied the whole ceremony, the enthusiasm not wearing away even once. सिल्वर मेडल 50 मीटर में रामदास ने प्राप्त किया है। The assembly ended with the closing notes of the national anthem. And thus began another day of learning. मैं तो यहाँ पे 1978 से काम कर रही हूँ ब्लाइंड बच्चों के साथ, और बच्चों के लिए लाइब्रेरी का सारा काम देखती हूँ। जितना भी बच्चों की बुक्स कहाँ से बनती हैं, कैसे बनती है, सारा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों के लिए तो सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हम उनको खाना पीना, इवन उनकी बेसिक चीज़ें भी उनको हम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। बच्चों का जो स्कूल है वो फर्स्ट से नर्सरी से लेकर 12th तक है, और हम कोशिश करते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेके हम 12th क्लास के सभी बच्चों को एक सेट, हर बुक, हर सब्जेक्ट की हर बुक, यानी एक कंप्लीट सेट हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को इस वक्त कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी सिखाने की कोशिश करते हैं। टाइपिंग तो मेन सिखाए बहुत पहले से ही चल रहा है। मेरे ओपिनियन में तो बच्चों को भेजना तो ज़रूर चाहिए, बशर्ते कि उनको वहाँ भी पूरा अच्छा सा रिस्पांस मिले। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ब्लाइंड में मिक्सअप हो जाते हैं, कि दूसरे स्कूलों के बच्चे अगर इनको मिक्सअप करें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाहर दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सी बच्चे एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिलता। जितने भी साइटेड बच्चे हैं वो अपने दोस्त अपने तरीके से उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ अपनी ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो कई बार ये बच्चा लोनली फील करता है वहाँ पर। बस उसके साथ एक ही बात जुड़ी हुई है कि उनको प्रॉपर वहाँ से रिस्पॉन्स मिले, उनको प्रॉपर हेल्प मिले, और बच्चे क्लास में भी उतना ही उनको उसी तरह से होमवर्क दिया जाए, वैसे ही उनसे रिस्पॉन्स लिया जाए,
टीचर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और जो वहाँ साइटेड बच्चे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। टीचिंग एड्स दिखा कर उन बच्चों को बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे है। क्लास में टेप रिकॉर्डर से पोएम सुनाकर, बर्ड्स की, एनिमल्स की वॉइसेस सुनाकर उनको बताया जाता है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें किस तरह से है, कैसा है। और ज़्यादातर बच्चों को इम्बोज चीज़ें हाथ में पकड़ाई जाती हैं ताकि उनको टच करके वो फील कर सके कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। कितना लंबा है ना, ये गोल तो नहीं है ना। अब देखो ये कहाँ आएगा, देखो कहाँ फिट होगा ये। शाबाश, हाँ इधर देखो, शाबाश, घुमाओ, सीधा करो, सीधा करो, और सीधा करो, चलो लगाओ, आगे ना इसमें। Students at the school learn from an early age the use of special tools and methods. Blindness is not an excuse for any kind of inefficiency and does not keep the children away from any activity. From cricket to schoolwork, everything has an important part in the curriculum. Blank white sheets, their surface broken with raised dots. Dots which spelt words, formed sentences, conveyed knowledge. The Braille script did not mean much to me, but those little children were being taught not only to make sense of it, but to write. With their styluses and stencils, they practiced punching those 6 all-important dots. Dots which would later represent all the characters in the Hindi and English languages. काफ़ी इंसिडेंट्स हुए बचपन में, तो नहीं पता लगता था। पहले लगता था कि मैं इक्वल हूँ, मतलब मेरा भाई जैसे है और मैं हूँ एक जैसे ही हैं। अच्छा। क्योंकि तब क्या होता था कि उस ज़माने में बाइस्कोप दिखाने आया करते थे लोग, तो भाई भी देखा करता था, तो मैं भी ज़िद किया करता था, मैं भी देखूँगा। तो वो कहता अच्छा देख। तो जब जहाँ से देखते हैं स्क्रीन के सामने जो भी होता है, वहाँ पे मेरा मुंह कर देता था और थोड़ी देर में मुझे लगता हाँ चलो देख लिया मैंने। तो ऐसा नहीं पता लगता था। फिर सबसे बड़ा इंसिडेंस तब हुआ तो कि मैं क्रिकेट का खैर बचपन से बहुत शौकीन रहा, तो खेला करते थे हम लोग गली में। तो पहले भाई को मैं बॉल फेंका करता तो सही से मार लेता था, लेकिन वो मुझे फेंकता था, कोई एक आधी बॉल कभी लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी। तो मुझे लगता था वन बाउंस किया यार, इसके तो बैट पे सही गेंद लग जाती, मेरे क्यों नहीं लगती, कुछ ना कुछ चक्कर है। तो इस बात से बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा कि हाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब जैसे उसे दिख रही है गेंद मुझे दिख नहीं रही है। तो इसलिए बाद में 8-7 साल का था मैं जब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि हाँ अब कुछ अलग हूँ मैं अपने भाई से। मैं आजकल नोएडा में एक कंपनी है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, उसमें काम करता हूँ। मदद क्या तो नहीं करते हैं, मदद तो आप MNCs का तो ये है कि आपको काम में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का कोई कंसेशन नहीं मिलता कि आप ब्लाइंड हो या क्या हो। अगर वो काम उनका परफेक्ट नहीं है तो फिर यू विल गेट थ्रोन आउट। कमी है ब्रेल बुक्स की, ये सही कहते हैं लोग, लेकिन इस कमी को ओवरकम करने के लिए आपके पास कंप्यूटर है। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, कम से कम ब्लाइंड के लिए। तो जो भी स्क्रीन पे आता है, जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, मूव करता है, कर्सर का पॉइंट जहाँ पे भी होता है वो जो उसको बोल देता है। जैसे अब डेस्कटॉप पे हम खड़े हैं, इस टाइम पता लगा लेते हैं कहाँ पे खड़े हैं, ऐसे तो बोलते हैं टाइटल इज डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप पे हैं अभी। सारे आइकन जितने भी डेस्कटॉप पे सब बताता है। सब कुछ मैं करता हूँ, डाउनलोडिंग वगैरह, चैटिंग। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं बाहर भी, स्पेशली मैं US वगैरह वैसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं पाकिस्तान वालों से बहुत बात करता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच में पॉलिटिकल डिस्प्यूट है हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या वहाँ की पब्लिक क्या मानती है, मतलब पब्लिक का क्या मानना है। इसलिए मैं पाकिस्तानी से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि पब्लिक भी इतनी हॉस्टाइल है जितनी कि वहाँ की गवर्नमेंट है, इंडिया के अगेंस्टमेंट जो भी है वो भी इतनी ही मतलब ऐसा इनका हॉस्टाइल बिहेवियर है, या वो फ्रेंडली हैं काफ़ी, या क्या मानते हैं वो इंडिया के बारे में, या इंडियन से बात करना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। रमन जी, आप मुझे कंप्यूटर असेंबल करके दिखा पाएंगे अभी? हाँ, मैं आपको असेंबल करके तो अभी ऐसे दिखा दूंगा, मैं आपको खोल कर बता दूंगा कि पार्ट्स क्या है, ये क्या होता है, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं।
असेंबलिंग से पहले एक चीज़ नोट करनी होती है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि यूज़र का रिक्वायरमेंट क्या है इस हिसाब से। उसके बाद ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं SMPS, जिसके अंदर से सारा सिस्टम को पावर मिलता है। मान लो रैम नहीं लगा हमारे से ठीक से, तो उसके बाद हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करेंगे तो बीप देगा आपको। और अगर हमारा कोई जो यहाँ पे मदरबोर्ड की कोने पे ये वायर लगे होते हैं, ये अगर ना लगे हुए हों तो उसका पावर ऑन ही नहीं होगा। कि पावर जो कैबिनेट का पावर है वो इससे जाता है कैबिनेट से। लोगों का विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल लोग किसी को जाकर बताएंगे कि भाई मैं असेंबल कर लेता हूँ, तो सोचेगा थोड़ा कुछ ख़राब कर देगा ये, या कुछ सही से असेंबलिंग नहीं करेगा। हो सकता है एक दिन चले तो अगले दिन ना चले, जबकि सामान वही होता है, वही लगता है। अगर वो एक दिन चलेगा तो अगले दिन भी चलेगा। Today, as I complete my thesis, the barriers which my mind had put up have fallen apart. The barriers which gave me the status of the do-gooder, the helpful person. And I am left face to face with the fact that the presence or absence of vision, though important, is not what makes or breaks the person. I have realized that the barrier of sight, which had kept us apart, did not dehumanize the people on the other side. It did not make them better or worse than the next person. What I felt then was admiration for the power not only to overcome barriers, but to also find joy and meaning in existence. For that indomitable spirit of theirs, which surmounts the darkness and finds light in dreams and aspirations. Joy in small things and great motivation deep within. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा।